Hello dear students, good morning. Hope you all are doing well and enjoying your online classes. Students, we are reading chapter number 3, Understanding Windows 7 from your class 5th computer book Click IT. Children, we have been learning about Windows 7, and before we go further in this chapter, let's have a very short recap. We have been learning that Windows is an operating system, right? So what is an operating system? An operating system is a collection of programs that control the application software and provides a link between the hardware and software. And Windows 7 comes with graphical user interface, that is called GUI in short, and Windows also has many versions such as Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 2007 and Windows 2008. However, Windows 7 and Windows 8 are commonly used and Windows 10 is the latest version. Now, tell me, do you remember who is the founder of Microsoft? Because Windows 7 is introduced by Microsoft. I hope that you remember that Microsoft was founded by Bill Gates. He started working on Microsoft along with his friend Paul Allen, and then Bill Gates introduced Windows for the general purpose application. Okay, so now we have also learned about icons, computer, Internet Explorer, shortcut icons. Icons are small images that you can see on the desktop, and then we have Windows 7 accessories as like calculator, sticky note, notepad and wordpad. We have already discussed them in our previous video. So today we're gonna go further and we'll read about control panel. What is control panel? Let's see that. Control panel gives you various tools which helps in formatting the working or appearance of the window. Formatting such as changing the desktop, background, screensaver, pointer of the mouse, adjusting the volume, making changes in the working of the keyboard and various other things can be done using the control panel. So students, as the name suggests here, control means what? किसी चीज़ को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना. सो कंट्रोल पैनल से ही आपको समझ जाना चाहिए इसके नेम से ही कि इसका मेन फंक्शन क्या होगा, इसका मेन कार्य क्या होगा. कंट्रोल पैनल आपको बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है जो कि आपके किसी भी विंडोज़ के अपीयरेंस को या फिर जिस पे आप वर्क कर रहे हो उसमें चेंजेस करने में हेल्प करता है. फॉर्मेटिंग मीन्स टू मेक चेंजेस, किसी भी चीज़ में चेंजेस लाना, उसको और अच्छा बना देना, अट्रैक्टिव बना देना, जैसे कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड में चेंजेस कर देना, स्क्रीन सेवर लगाना, पॉइंटर जो है होता है माउस का उसमें चेंजेस करना, और इसी तरह से वॉल्यूम एडजस्ट करना. बहुत सारे जो चेंजेस हम करते हैं कीबोर्ड की सेटिंग्स में, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम कंट्रोल पैनल की हेल्प से करते हैं. ओके, तो कंट्रोल पैनल को ओपन कैसे करते हैं? हाउ टू ओपन द कंट्रोल पैनल? फॉर दैट वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स. व्हाट आर दे? लेट्स रीड अबाउट देम. फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. स्टूडेंट्स, for starting control panel we will have to click first on start button. okay, तो start button पे पहले आपको click करना है. step 2, click on control panel. उसके बाद आपको control panel यहाँ पे दिख जाएगा. can you locate that? can you see that? आप start button के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो स्टार्ट बटन को प्रेस करने पे आपका कंट्रोल पैनल ऑप्शन दिख जाएगा और उसमें से स्टेप 3 में आपको क्या करना है? सिलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द अपीयर लिस्ट. अब इसमें से आपको जो भी चेंजेस करने हैं उस ऑप्शन को जो भी ज़रूरत है आपकी उसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करेंगे. ओके, लेट्स सी दैट. सो हेयर इज़ कंट्रोल पैनल, विंडो अपीयर्स. ओके, देन if you want to make any changes or do any formatting work, then you will have to select the option according to your requirement. okay, so step first is double click on the computer icon on the desktop. Then step 2, click on the open control panel button on the toolbar.
ओके, सो दोनों ही स्टेप्स आपके वर्क करते हैं, चाहे आप इस तरीके से स्टार्ट बटन को प्रेस करके कंट्रोल पैनल को ऑन करें या फिर डबल क्लिक करके कंप्यूटर आइकन जो आपका बाहर डेस्कटॉप पे रखा हुआ है उस पर आप ओपन कर लीजिए इजीली। तो दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हो कंट्रोल पैनल को ऑन करने के लिए या फिर ओपन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव वेरियस ऑपरेशंस। तो अलग अलग ऑपरेशंस। फर्स्ट इज सेटिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो पहला जो हम देखेंगे, जो अलग अलग हमारे ऑपरेशंस के लिए अलग अलग फीचर्स दिए गए हैं। तो जैसे हमें अगर कोई भी डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में सेटिंग चेंजेस करने हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। द बैकग्राउंड ऑफ योर डेस्कटॉप कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू योर विश। यू कैन ऑल्सो सेट योर फेवरेट पिक्चर एज द बैकग्राउंड। टू चेंज द बैकग्राउंड you have to step first, right click at any empty space on the desktop, then click on the personalize option from the menu appeared. Okay, step 2 is select desktop background. A new window would appear. So students, we will try to understand this through this image. अगर आपके पास कोई भी गैजेट होता है, लाइक कोई भी डिवाइस, और सिंपल सा मोबाइल ही ले लीजिए, तो आप उसमें बहुत सारे चेंजेस करते हो, उसमें थीम्स आप लगाते हो, सेटअप करते हो, कभी कभी वॉलपेपर सेट करते हो ताकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। तो इसी तरह से हमारे पीसीज़ में जो डेस्कटॉप होते हैं वो प्लेन विंडोज़ का इंटरफेस आपने देखा हुआ है, ब्लू कलर का होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो, इफ़ यू वांट टू मेक फर्दर काइंड ऑफ चेंजेस, उसमें कोई भी आप चेंजेस करना चाहते हो कि वहाँ पे कोई वॉलपेपर सेट करना है या फिर अपनी अकॉर्डिंगली आप उसमें कुछ अलग डिज़ाइनिंग लगाना चाहते हो, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप सिंपली उसमें चेंजेस कर सकते हो। किस तरह से, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, राइट क्लिक किसी भी स्पेस पे, मीन्स डेस्कटॉप के किसी भी एम्प्टी स्पेस पे आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपका एक इस तरह का मेन्यू अपीयर हो जाएगा, यहाँ देख सकते हो आप। ओके, उसके बाद उसमें से आपको पर्सनलाइज ऑप्शन को क्लिक करना है। ओके, इसमें जाने के बाद आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड को क्लिक करना है। ओके, देन आफ्टर दैट व्हाट यू विल हैव टू डू, लेट्स सी दैट। Then step 3, you will have to select the required option from picture location. Here you can see, okay, select picture of your choice. Here we will have the third and fourth step. Then in fourth step, select a picture according to your wish. Then step 5, click on the save changes. Okay, तो अब यहाँ पे क्या होगा, लोकेशन पे आप क्या सेलेक्ट करते हो कि आपको कहाँ से उस पिक्चर को ब्राउज़ करना है, मींस लाना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके गैलरी में सेव है या फिर अंदर किसी ड्राइव में है, सी में है, या फिर आपने किसी फाइल या किसी फ़ोल्डर के अंदर रखा हुआ है, वो कोई इमेज आपको सेट करना है, तो फिर वो पिक्चर आपको इजीली वहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे उसको एज वॉलपेपर सेट कर सकते हो। ओके, और इसके बाद सेट करने के बाद आपको सेव चेंजेस बटन को क्लिक करना होता है, डोंट फॉरगेट दैट। ओके, now next up is selecting changing screensaver. Have you ever seen screensaver? Screensaver आप जानते हो क्या होता है? Let's read about it. Screensaver is the screen that appears then when the computer is left idle for some time. You can also change the screensaver of your computer. To do so, you will have to. So screensaver, underline these lines. Screensaver is the screen that appears when the computer is left idle for some time. तो screensaver क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने कई बार ऐसा होता है कि हम वर्क करते हैं कंप्यूटर पे, पीसीज पे अपने, तो एक साथ बहुत सारे हम विंडोज़ को ओपन कर लेते हैं, एक साथ बहुत सारे वर्क करते हैं, ऑपरेट करते रहते हैं एक काम करते वक्त। तो क्या होता है, कभी कभी हम अगर बिज़ी हो जाते हैं, बीच में से कोई ब्रेक ले लिया है हमने, वर्क करते करते सडन उठ जाते हैं हम लोग और बहुत देर तक वो कंप्यूटर पे कोई काम नहीं होता है, लाइक 10 मिनट्स या 15 मिनट्स। तो उसके बाद क्या होता है, कंप्यूटर उस कंडीशन में चला जाता है कि जब उस पर कोई वर्क ही नहीं कर रहा हो, यानी कि आइडल। आइडल मीन्स होता है बेसिकली लेज़ी या आलसी, या जब कोई कुछ ना करता हो। तो इसी तरह से कंप्यूटर की जब ये कंडीशन आ जाती है कि उस पर यूज़र वर्क नहीं कर रहा है, तो थोड़ी देर के लिए उस पर क्या हो जाता है, कंप्यूटर की एक आइडलनेस आ जाती है। और उस टाइम पे कंप्यूटर पे क्या होता है, आपने जो भी स्क्रीन सेवर सेट किया हुआ है वो अपीयर होने लगता है। कई बार लोग स्क्रीन सेवर में बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस, पिक्चर्स वगैरह सेट करके रखते हैं, जिससे कि उनका पीसी जब खाली टाइम पे अगर इस तरह से कोई देखे तो उसको
अच्छा लगे, बहुत ही इम्प्रेसिव लगे। तो इस तरह से स्क्रीन सेवर वो स्क्रीन होती है जो कि तब दिखाई देती है जब कंप्यूटर थोड़े टाइम के लिए आलसी हो जाता हो, यानी कि कोई काम उस पर ना हो रहा हो। ओके, होप यू हैव गॉट दैट। सो इसके लिए अगर हमें कोई स्क्रीन सेवर सेट करना है तो क्या करना होगा, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। व्हाट आर दे, लेट्स रीड अबाउट देम। ओके, स्टेप फर्स्ट इज right click on any empty space on the desktop. Here a pop-up menu appears. Step 2, click on personalize option. तो आपको क्या करना है स्टेप फर्स्ट में, आपको सिंपली फर्स्ट स्टेप आपका वही है, डेस्कटॉप में आप किसी भी स्पेस में किसी भी खाली जगह पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप मेन्यू दिख जाएगा और उसके बाद ये इस तरह का दिखेगा। ओके, और इसमें जाने के बाद अगेन आपको पर्सनलाइज में जाना है। पर्सनलाइज मीन्स क्या होता है, व्यक्तिगत, यानी कि हमारी अपनी चॉइस का, करेक्ट, पर्सनल चॉइस का, उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्सनलाइज। तो ऑब्वियसली अगर हमें डेस्कटॉप चेंजेस करने हैं, इमेजेस या स्क्रीन सेवर सेट करना है अपनी पसंद का, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए पर्सनलाइज हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप स्टेप 2 को ईजिली अपने माइंड में रख सकते हो। नाउ next up we have to go where we have to select the screensaver option. Okay, here you can see that option. तो इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपके स्क्रीन सेवर ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कुछ स्क्रीन सेवर नज़र आएंगे जिसमें से आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है उसको, ठीक है। नाउ यू विल हैव टू गिव मिनट्स टू वेट, कुछ टाइम के लिए आपको, मिनट्स के लिए आपको वेट करना है। उसके बाद आपको वो दिख जाएगा और इसके बाद आपको क्लिक अप्लाई और उसके बाद ओके करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ओके बटन पे क्लिक करना ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स सी दैट। स्टेप 3, सिलेक्ट स्क्रीन सेवर ऑप्शन। आई हैव जस्ट explained that to you. Select any screensaver from the given list. You can use the preview button to view the screensavers before finalizing. तो ये प्रीव्यू बटन क्या होता है, प्रीव्यू मीन्स पहला, व्यू मतलब देखना। तो इस वर्ड को आप समझ सकते हो कि क्या मतलब हुआ इसका। प्रीव्यू मीन्स पहले से ही देख लेना कि ये स्क्रीनसेवर जो आपने सेट किया हुआ है या आप सेट करने वाले हो वो कैसा दिखेगा आपके डेस्कटॉप पे या आपके पीसी पे। तो इस तरह से आप उसका प्रीव्यू भी देख सकते हो, ठीक है। प्रीव्यू देखने के बाद आप फाइनलाइज कर सकते हो कि वेदर यू शुड गो फॉर दैट और नॉट, अगर आपको वो सिलेक्ट करना है या नहीं, चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली आप उसको सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज़ आपको ड्रॉप करना पड़ेगा ये आइडिया और दूसरा कुछ सिलेक्ट करना होगा। तो प्रीव्यू जो बटन होता है उसके थ्रू हम ये चीज़ देख सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स गो फर्दर। ओके, in step 5, give a number in the wait box to decide the time for which the computer, if left idle, would show the screensaver. तो स्टेप 5 पे आपको क्या करना है, वेट बॉक्स में आपको टाइम डालना है कि कितनी देर के लिए कंप्यूटर जब आइडल होगा, जिस पे यूज़र उस वक्त वर्क नहीं कर रहा होगा, तो वो स्क्रीन सेवर दिखाएगा, जैसे कि 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। तो इस तरह से ये सेटिंग में ही आपको ऑलरेडी फिल कर देना है उस वेट बॉक्स में। देन स्टेप 6 पे आपको अप्लाई करना है बटन पे क्लिक, उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट अप वी हैव चेंजिंग द विंडो कलर। अब अगर आपको विंडो कलर चेंज करना है, ब्लू कलर का यूजुअली होता है, अगर उसमें चेंजेस करने हैं तो क्या करेंगे आप, let's make the reading first. You can also change the color of your window borders. Start menu and the taskbar. To change the color of your window, you have to step first, right click on any empty space on your desktop and click on the personalize option. Step 2, click on the window color option. Step 3, select the color of your choice and then click on the save changes button. तो ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपका यहाँ पे देखिए स्टेप फर्स्ट और सेकंड जो अब तक आप पढ़ते आए उसको मिक्सअप कर दिया गया है। तो स्टेप फर्स्ट में ही आपको क्या करना है, डेस्कटॉप पे कहीं भी आपको एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करना है, उसके बाद पर्सनलाइज ऑप्शन को चूज़ करना है। देन ईजिली आपको विंडो कलर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है उस सब जो पॉपअप मेन्यू अपीयर होता है वहाँ पे, उसमें से। उसके बाद आपको अपनी चॉइस का कलर वहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको कहाँ क्लिक करना है, यू हैव टू क्लिक सेव चेंजेस बटन, यानी कि आपने जो चेंजेस किया है अब उसको सेव करना है, आपको उसको सेटिंग में
अपडेट कर देना है, सेव कर देना है, ठीक है। नाउ लेट्स गो फर्दर। Next up we have Windows Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player is used to play and organize digital media files on a computer and internet. It can be video, audio, or both. We play and copy CD, DVD, create our own CD, DVD, and copy music and video to all portable devices. We can also listen to radio stations with the help of internet. So Windows Media Player, this is the most usual thing to be operated on any PCs or any laptop. यूजुअली पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, विंडोज़ मीडिया प्लेयर को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि जनरली घर पे भी जो लोग होते हैं, लाइक जो भी यंग हो अगर, या फिर किसी भी एज ग्रुप के जो लोग होते हैं, वो लोग इस पे ज़्यादातर ऑडियो देखना पसंद करते हैं, वीडियो देखना पसंद करते हैं। साथ ही इस पे अपनी सीडी या डीवीडी भी वो लोग प्ले कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, म्यूज़िक को कॉपी किया जा सकता है, वीडियोस को। तो इस तरह से हर जितनी भी पोर्टेबल डिवाइसेस हैं उन पे इसको इंपोर्ट किया जा सकता है, कॉपी करके लाया जा सकता है। और साथ ही इसमें रेडियो स्टेशंस भी होते हैं। अगर इंटरनेट आपका कनेक्शन है मॉडेम के थ्रू, तो आप इसमें रेडियो को भी सुन सकते हो। तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर आपके मीडिया से रिलेटेड जो भी टास्क हैं, जो भी वर्क हैं, उनको करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे मूवीज़ वगैरह आप यूजुअली क्या करते हो, विंडोज़ मीडिया प्लेयर पे ही देखते हो। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अप इज़ रिपिंग एंड ऑडियो वीडियो सीडी। रिपिंग मीन्स क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपिंग। रिपिंग स्टूडेंट्स, रिपिंग इसको हम यूजुअली अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हो, डिजिटल एक्सट्रैक्शन। इसको डिजिटल एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी डीवीडी या सीडी में से आप इसको कॉपी करके अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव पे ले सकते हो, ठीक है। तो उसको ही हम बोलते हैं रिपिंग। चाहे वो ऑडियो हो या वीडियो हो, दोनों में से कुछ भी हो, तो आप इसको अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव पे आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हो या उतार लेते हो, ओके। सो ये किस तरह से करते हैं, रिपिंग एंड ऑडियो वीडियो किस तरह से होता है, इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। व्हाट आर दे, लेट्स सी दैट। टू रिप अ सीडी to your computer, follow these steps. What are they? Let's see. First of all, step first is click on Windows Media Player under Accessories. तो आपको यहाँ पे Windows Media Player का विंडो दिख रहा होगा। इसमें आपको क्या करना है, आपको Windows Media Player के एक्सेसरीज़ में जाना है। उसके बाद स्टेप 2 में आपको ऑर्गेनाइज ऑप्शन दिखेगा। इस बटन को आपको सिलेक्ट करना है। इस बटन को सिलेक्ट करते ही आपके पास एक और डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, खुल जाएगा इस तरह का। स्टेप 3 में अंडर रिप म्यूजिक टैब मेक श्योर MP3 सेलेक्टेड अंडर फॉर्मेट ऑप्शन एंड रिप CD। तो उसके बाद आपको यहाँ स्टेप 2 में आप देख सकते हो कि आपने जैसे ही ऑर्गेनाइज बटन को प्रेस किया वैसे ही ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। और उसके बाद आप जब रिप म्यूज़िक करने जाते हो तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आपके टैब में वहाँ पे MP3 फॉर्मेट दिया हुआ हो, ओके। और साथ ही जब आप रिप करने वाले हो सीडी को, तो उस वक्त आपका ये जो ड्राइव है वो अनचेक्ड हो। अनचेक्ड मीन्स कि उसमें इस मार्किंग जैसा का निशान ना हो, ठीक है, इस तरह का ना हो, यानी कि वो खाली हो। यहाँ आप देख सकते हो ये आपका प्लेन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो फॉर्मेट है वो MP3 लिखा हुआ होना चाहिए, यानी कि आप ऑडियो को रिप कर रहे हो, ठीक है, किसी भी सॉन्ग को। ऑडियो मीन्स क्या होता है, जो भी सॉन्ग हम सुनते हैं। स्टेप 4 पे इंसर्ट एन ऑडियो वीडियो CD इन द CD ड्राइव। अ लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स वीडियोज डैट कंटेन इन द CD विल बी डिस्प्लेड। तो आपने कंप्यूटर जो भी आपने CD लगाई हुई है CD ड्राइवर में वहाँ पे, तो उस जब
आप ये करते हो तो वो सारी लिस्ट ओपन हो जाएगी, इस तरह की सारी सॉन्ग्स ओपन हो जाएंगे, सब दिखने लगेगा आपको, उसके अंदर का जितना भी कंटेंट है सब कुछ आपको दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है स्टेप 5 पे यू हैव टू अनचेक बॉक्सेस नेक्स्ट टू द सॉन्ग वीडियो दैट यू डोंट वांट टू रिप। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इस इमेज में हेयर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे क्या है, ये सारे लिस्ट है, ठीक है, आपके कंटेंट है उस सीडी का। तो जिसमें से आपको अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपको बॉक्स नज़र आ रहे होंगे, तो इसमें से अनचेक करना है, यानी कि आपको, क्योंकि इसमें बॉक्स में सब में टिक होगा, इस तरह से चेक्ड होगा, इसमें से आपको जो भी फाइल आपको नहीं चाहिए, मीन्स जिसको आपको रिप नहीं करना है ऑडियो को या वीडियो को, तो उस बॉक्स को आपको अनचेक करना है, यानी कि आपको इस तरह से हटाते जाना है, ठीक है, खाली करते जाना उस बॉक्सेस को, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनचेक करना। तो इस तरह से उसके बाद रिप करने से पहले इतना आपको मेक श्योर करना है। देन एट लास्ट क्लिक ऑन रिप सीडी, द रिपिंग प्रोसेस विल स्टार्ट। जैसे ही आप इतना करने के बाद रिप सीडी ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपका रिपिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, when it completes all audio video files ripped to Windows Media Player library, you can go to the library to play them। जैसे ही ये फिनिश हो जाएगा प्रोसेस, उसके बाद आपकी जो सीडी ड्राइव में जितनी भी ऑडियोज़ रही होंगी या फिर वीडियोज़ रही होंगी, वो सब कुछ कहाँ पे आके सेव हो जाएंगी, आपके कंप्यूटर के विंडोज़ मीडिया प्लेयर में आके सेव हो जाएंगी। उसकी लाइब्रेरी होती है, यानी कि उसमें सॉन्ग्स के भी फाइल फोल्डर्स होते हैं और अलग से वीडियोस के भी होते हैं। तो ये सब कुछ आपका कहाँ आ जाएगा, कहाँ आकर सेव हो जाएगा, आपके विंडोज़ मीडिया प्लेयर में। ओके, अब इसमें आप इस लाइब्रेरी में कभी भी जा सकते हो और उसको कभी भी प्ले कर सकते हो, राइट। नाउ इसके लिए अगर आपको स्टॉप भी करना है, मान लीजिए आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो बीच में से, तो अगर आपको ऐसा लगता है देन यू कैन स्टॉप रिपिंग एनी टाइम बाय क्लिकिंग स्टॉप रिप बटन। तो आप ये रिपिंग प्रोसेस को रोक भी सकते हो। क्या करना होगा इसके लिए, आपको सिंपली क्लिक करना होगा स्टॉप रिप बटन पे। ओके, टू चेंज द फॉर्मेट एंड क्वालिटी ऑफ रिप्ड फाइल्स यू कैन क्लिक ऑन रिप सेटिंग बटन। और अगर आपको किसी भी ऑडियो या वीडियो का चेंजेस करना है, उसकी क्वालिटी में चेंजेस करना है, तो आप इसके सेटिंग वाले बटन को भी क्लिक करके ये सारे चेंजेस कर सकते हो, राइट। नाउ लेट्स गो फर्दर एंड विल रीड अबाउट बर्निंग अ सीडी। बर्निंग अ सीडी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बर्निंग अ सीडी। बर्निंग मीन्स होता है जलना, बट बेटा यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है। बर्निंग सीडी मीन्स होता है कॉपी डेटा टू सीडी, यानी कि सारा जो डेटा है किसी सीडी पे आपको कॉपी करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, बर्निंग सीडी। ओके, now data can be saved in a DVD CD from a computer hard disk. This process is known as burning a CD. Underline these two lines, it could be an answer for any question. To burn a CD follow these steps. So students, कई बार ऐसा होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर उसके हार्ड ड्राइव में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है या यूज़फुल कोई भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर वीडियोज़ होती हैं, फाइल्स होते हैं, इट कुड बी एनीथिंग लाइक। तो हम लोग क्या, उसको अगर ज़रूरत होती है तो हमें उसको अगर सीडी या डीवीडी में लेना होता है तो हमें क्या करना होता है, उसको कॉपी करना होता है अपनी सीडी या डीवीडी में। तो इसी डेटा को, यानी कि ये सारी डेटा जो कि हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पे है, उसमें से उन सारे डेटास को कॉपी करना अपने किसी भी सीडी या डीवीडी में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बर्निंग ए सीडी। ओके, इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। व्हाट आर दे, लेट्स सी। स्टेप फर्स्ट इज इंसर्ट ए ब्लैंक सीडी इनटू योर कंप्यूटर। तो सबसे सिंपल, आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर आपको सीडी या डीवीडी पे कुछ भी कॉपी करना है तो ऑब्वियसली आप अपने लैपटॉप या सीडी के जो आपका सीपीयू है उसके ड्राइव में जाएंगे, सीडी ड्राइव में, और उसमें आप एक ब्लैंक सीडी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 2, क्लिक ऑन बर्न फाइल्स टू डिस्क यूजिंग विंडोज़ एक्सप्लोरर ऑप्शन। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर ऑप्शन में जाके आपको कहाँ पे क्लिक करना है, बर्न फाइल्स टू डिस्क। ओके, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। स्टेप 3, बर्न अ डिस्क डायलॉग बॉक्स अपीयर। अब उसके बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा।
टाइप द डिस्क टाइटल इन द स्पेस प्रोवाइडेड एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। अब इसके बाद आपको एक टाइटल देना है, ठीक है, इसका टाइटल देंगे आप और नेक्स्ट बटन को आप क्लिक करोगे। स्टेप 4, एन एम्प्टी डिस्क फोल्डर अपीयर्स, क्योंकि अभी उस फोल्डर में कुछ नहीं है तो वो खाली है और वो दिख जाएगा आपको जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे। नाउ ड्रैग द फाइल्स दैट यू वांट टू बर्न इनटू द फोल्डर एंड क्लिक ऑन बर्न टू डिस्क बटन। अब उसके बाद आपको उस फाइल को ड्रैग करना है इस तरीके से। मान लीजिए आपकी कोई भी फाइल यहाँ पे है, आपको यहाँ लाना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली आपको इस तरीके से ड्रैग करना होगा इस फाइल को दूसरी जगह पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अप लेट्स सी फर्दर and we'll try to understand through this image also. Okay, here you can see that, okay, step first is here and step 2 is here. तो स्टेप फर्स्ट में आपको सीडी डालनी है, सीडी बर्नर, और उसके बाद अपनी हार्ड ड्राइव जो आपकी है कंप्यूटर की, वहाँ से सारा डेटा आपको क्या करना है, इस तरह से ड्रैग करके इसमें लाना है। जैसे ही आप करोगे आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा सीडी बर्निंग का, और सारा जो डेटा है वो कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगा उस सीडी में, जो सीडी आपने अपने कंप्यूटर के सीडी ड्राइव में लगाई है। ओके, नाउ लेट्स रीड सम मोर थिंग्स अबाउट इट. The difference between rip and burn is that rip means copying music files from an audio CD to your computer's hard drive, while burn means recording music files from your computer onto a blank CD. You will need software such as iTunes or Windows Media Player to rip or burn CDs. Okay, burning CDs and selling the copy is illegal in most countries. तो डिफरेंस क्या है रिप और बर्न का, यानी कि किसी भी, जब हम बोलते हैं रिपिंग सीडी, रिपिंग और बर्निंग सीडी, तो इन दोनों के बीच का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर वो क्या है, इसको आप सिंपली समझ लीजिए। रिप मीन्स क्या होता है, किसी भी म्यूज़िक फाइल्स को कॉपी करना ऑडियो से, ऑडियो सीडी जो कि आपके कंप्यूटर हार्ड ड्राइव के अंदर है, किसी भी सीडी में उसको कॉपी करना। ओके, लेकिन बर्निंग का मीन्स क्या होता है, टू बर्न मीन्स रिकॉर्डिंग म्यूजिक फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर ऑन टू ए ब्लैंक सीडी। ठीक है, तो जो भी कंप्यूटर में आपका म्यूज़िक फाइल है उसको उस सारी रिकॉर्डिंग्स को कहाँ पे सीडी में कॉपी करना या रिकॉर्ड करना, उसको हम बर्निंग सीडी बोलते हैं। ओके, और इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है, और उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, iTunes, विंडोज़ मीडिया प्लेयर टू रिप बर्न सीडीज़। तो दोनों ही सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, तो आप इसको अपने पीसीज या लैपटॉप में यूजुअली लोग रखते हैं अगर उनको सीडी बर्न करनी होती है या रिप करना होता है। तो यू ऑल्सो हैव टू लर्न दिस नेम iTunes एंड विंडोज़ मीडिया प्लेयर टू रिप और बर्न सीडीज़। बर्निंग सीडीज़ एंड सेलिंग द कॉपी, किसी भी सीडी को बर्न करना यानी कि उस डेटा को कॉपी करके रखना और उसको सेल करना, ठीक है, बेचना, ये क्या है, इलीगल माना जाता है बहुत सारे देशों में। ओके, सो विद दिस आवर टुडेज क्लास गेट्स एंड। आई होप you have understood everything. I'll see you in next class with another video. Till then, take care. Thank you.